Hi guys, long time no see. I hope you guys are fine. I was busy making content on Instagram, so YouTube was ignored kind of a little bit. But I thought to come back on YouTube again and put out videos. So I'm going to start with a series called Decoding Bank Nifty, and it's going to be a mix of English and Hindi language because so many people requested to switch to Hindi language. But I was like, okay, mix रखेंगे थोड़ा, so English and Hindi दोनों viewers को समझ में आएगा. So what we are going to do is I'm going to upload a video of Bank Nifty post market discussing the trade opportunities and the price action about it every single day. और यूजुअली वो रात को आएगा, सो अप्रॉक्स 10 और 11 PM मे बी, बिकॉज ये सारा बाकी का काम करने के बाद जो टाइम बचता है आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग इन दैट. सो थोड़ा लेट आएगा, लेट नाइट आएगा, 9 से 11 PM के बीच में रहेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट एवरी सिंगल डे. So decoding Bank Nifty, let's start. आज का Bank Nifty, what happened today? Opened sideways. So I'm going to mark opening range over here. I have made a video on opening range. So जिसको पता नहीं है, please go and watch that first. Because I am a trader who trades Bank Nifty and I traded based on the opening range value. So I take references from opening range values और उसके basis पे मेरे जो trades होते हैं I decide based on opening range values. So काइंडली गो एंड चेक दोज वीडियोज़ जहाँ पे ओपनिंग रेंज के बारे में मैंने बोला है. लॉन्ग वीडियो है 24 मिनट का कुछ, बट यू नीड टू चेक इट आउट सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. ओपनिंग रेंज मैंने मार्क कर दिया है. सो दिस पर्पल लाइन एट द टॉप एंड बॉटम इज ओपनिंग रेंज एज ऑफ नाउ. वी विल सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. ओपनिंग रेंज एक्सटेंड हो सकते हैं, जैसे आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखा है तो यू विल नो कि एक्सटेंड हो सकता है. वी विल सी इफ इट एक्सटेंड्स आउट. 5 मिनट्स बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगा हुआ है. ओके, सो द नेक्स्ट कैंडल इज़ एन इनसाइड कैंडल, सो द ओपनिंग रेंज विल नॉट एक्सटेंड, उधर ही फिक्स हो जाएगा. सो वी गॉट आर ओपनिंग रेंज एज ऑफ नाउ. एंड द थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मॉर्निंग सेशन में होता है. सो ट्राई टू अवॉइड फर्स्ट 15-20 मिनट्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज स्टार्टिंग में STBT BTST ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स सारे एक साथ आ जाते हैं. तो स्टार्टिंग में डज नॉट मैटर व्हाट द विक्स इज़, स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में वोलाटिलिटी रहेगा ही रहेगा. No matter what day it is, no matter where the VIX is, 15-20 minutes, initial 15-20 minutes, there is going to be a lot of volatility in Bank Nifty. So try to avoid trading in that phase. काफ़ी लोग क्या करते हैं, most people in fact are used to trading Bank Nifty the moment it opens. Don't do it. Okay, अगर आपका BTST order है, you want to exit, that's another scenario. But if you are punching fresh orders in first 15-20 minutes, avoid doing it. It will cause you a lot of harm. उसमें से कुछ निकलता नहीं है अच्छा. Moreover, there's so much volatility जहाँ पे टेक्निकल प्राइस एक्शन पैटर्न्स ये सब वर्क करना बंद कर देता है. इट्स ऑल रैंडम वोलाटिलिटी, राइट, बिकॉज पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसका वोलाटिलिटी रहता है. सो ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग बैंक निफ्टी इन फर्स्ट 15-20 मिनट्स. आई पर्सनली डोंट ट्रेड इट माई सेल्फ. दैट इज़ द सेम एडवाइस आई एम गिविंग टू यू गाइज. ओके, we got our opening range high and lows, so let's see what happens next. Okay, so a breakdown and a recovery in Bank Nifty. So breakdown किस चीज़ का? So if you see over here, pivot point और opening range low are at the same point. ये जो मैं बात कर रहा हूँ, pivot point और opening range एक ही price point पे है, तो यहाँ पे it becomes an important level. And because it becomes an important level, it also becomes a liquidity level for institutional players. What is liquidity? Liquidity आपने अगर मेरे previous videos नहीं देखे तो please go and watch OR high का या trailing stop loss का videos. I have explained liquidity in those videos. यहाँ पे अगर मैं explain करने जाऊँगा it will take a lot of time more, और ये video काफ़ी ज़्यादा lengthy हो जाएगा. सो लिक्विडिटी हंट यहाँ पे हुई. मोर ओवर प्रीवियस डे का जो VWAP था वो भी यहीं पे था. सो दिस वाज अ वेरी गुड लिक्विडिटी जोन फॉर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जिनको लॉन्ग जाना था बैंक निफ्टी में इन द मॉर्निंग. सो व्हाट हैपेंड वाज, पहले ब्रेकडाउन जा रहा है ऐसा दिखाया बैंक निफ्टी ने, एंड देन इट रिक्लेम्ड. सो हियर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मार्केट्स. फर्स्ट, मार्केट इज़ नॉट रेडी टू गो डाउन. ओके, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन आने के बाद इट्स रिक्लेमिंग दोज लेवल्स एंड ऊपर जाके VWAP के क्लोज दे रहा है, इट मीन्स दैट मार्केट्स आर नॉट रेडी टू गो डाउन. तो जो मॉर्निंग सेशन का पूरा प्राइस एक्शन होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी आइदर बुलिश और साइडवेज. ओके, सो ये डेरिवेशन हम लोग को प्राइस एक्शन से क्या मिलता है कि बिकॉज ये ब्रेकडाउन होने के बाद लिक्विडिटी जोन निकालने के बाद द लेवल्स आर गेटिंग रिक्लेम्ड, इट मीन्स मार्केट्स आर नॉट रेडी टू गो डाउन इन द मॉर्निंग सेशन एटलीस्ट. तो हम लोग को क्या मिलेगा, आइदर वी आर गोइंग टू गेट अ साइडवेज मार्केट और अ बुलिश मार्केट.
in any scenario we are going to find longs. Why longs? Because हम लोग को पता है कि मार्केट्स नीचे नहीं जाने वाला है, सो द डाउन साइड प्रोटेक्शन इज देयर, राइट? एटलीस्ट वी फिगर्ड दैट आउट कि मार्केट्स का नीचे जाने का चांसेस आर रिलेटिवली लेस, सो वी कैन गो लॉन्ग. लॉन्ग कहाँ जाओगे? यू कैन आइदर पंच मार्केट ऑर्डर लॉन्ग यहाँ पे ही, जहाँ पे यू कैन सी द मार्केट्स आर गेटिंग क्लोज्ड 925 पे, यू कैन पंच मार्केट ऑर्डर्स लॉन्ग. बट वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है बिकॉज यू डोंट नो येट, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है या सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है या आपको एडिशनल कन्फर्मेशन मार्केट ने दिया नहीं है, सो इट बिकम्स अ बिट रिस्की. सो व्हाट विल डू इज विल वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू. फोमो नहीं लेना है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है हमेशा, दैट नेवर एवर एवर टेक फोमो. फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपके दिमाग में घुस गया, यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी इन मार्केट्स कंसिस्टेंटली. रिमेंबर दैट मार्केट्स आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर, और अगर एक ट्रेड आपका मिस हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. बट अगर फोमो के चक्कर में आप ट्रेड मारने लग गए, देन यू विल गेट इनटू ओवर ट्रेडिंग एंड द साइकिल नेवर एंड्स. यू विल गेट स्टक इनटू दैट लूप. सो डोंट टेक फोमो, नेवर टेक फोमो. जाता है छूटने तो कोई दिक्कत नहीं, अगला ट्रेड देख लेंगे. यहाँ पे हम लोग को कन्फर्मेशन की वेट करनी है. कन्फर्मेशन कैसे? कन्फर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट अगर एक और फॉलोअप कैंडल देता है देन दैट बिकम्स अ कन्फर्मेशन, या फिर अपने साइड में कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है, लाइक इन दिस जोन. अगर इफ़ द मार्केट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग, दैट इज़ अनदर कन्फर्मेशन. क्योंकि अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और हम लोग का थियरी यहाँ से निकल करके भी आ रहा है कि ब्रेकडाउन होने के बाद लिक्विडिटी जोन उड़ चुका है एंड देन द लेवल्स आर गेटिंग रिक्लेम्ड, दैट मीन्स मार्केट्स आर नॉट रेडी टू गो डाउन. ये हम लोग का व्यू पहले ही बन चुका है. एंड इफ़ द कंसोलिडेशन स्टार्ट्स देन इट अगेन सपोर्ट्स आर व्यू. लेट्स सी व्हाट हैपन्स, आई डोंट नो. Okay, so we get a green candle which acts as a confirmation. Why confirmation? Because यहाँ पे it is clear that markets ऊपर जाना चाहते हैं and then we get a huge green candle which itself is a natural confirmation, right? Now the question, will you buy markets here? यहाँ पे close हो रहा है 42614. Will you punch market buy orders at this point? Biggest question, because हम लोग को long तो जाना है ना. वी डिस्कस दैट मार्केट्स आर आइदर गोइंग टू बी साइडवेज और बुलिश. लॉन्ग तो जाना है. विल यू पंच मार्केट बाय ऑर्डर्स एट दिस पॉइंट? बिगेस्ट क्वेश्चन. थिंक अपॉन इट. यू हैव 5 seconds. So for those who said no, congratulations. For those who said yes, why do you want to punch market orders over here? Ask yourself. Question number 1. यहाँ पे क्यों? This probably is the worst point to go long. You know why? क्योंकि this is the point where institutional players will be interested to make a shakedown in the market. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग long जाएंगे. There will be huge crowd, masses of people going long. क्योंकि सब लोग को दिख रहा है ना मार्केट ऊपर जा रहा है. सब लोग को दिख रहा है ये रिवर्सल आया है. सब लोग, we are not the only ones looking at this chart ना. सब लोग को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, कन्फर्मेशन आया है, और क्या चाहिए? लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट, है ना. तो दिस पॉइंट बिकम्स अ वेरी कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर एवरीवन टू गो लॉन्ग. सो ऐसे पॉइंट्स को हमें अवॉइड करना है. वी हैव टू अवॉइड एंटरिंग आवर ट्रेड्स एट कॉमन एंट्री पॉइंट्स एंड दिस इज वन ऑफ द कॉमन एंट्री पॉइंट्स. क्योंकि सब लोग को दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है. व्हाट पीपल विल डू? पीपल विल स्टार्ट एंटरिंग लॉन्ग्स एट द क्लोज ऑफ दिस कैंडल. सो अवॉइड. वेयर वी कैन टेक लॉन्ग. ओके, यहाँ पे तो लेना नहीं है बट लॉन्ग तो लेना है. कहाँ पे ले सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो इफ़ यू सी VWAP इज होवरिंग एट दिस प्लेस. वॉट वी कैन डू इज वेन एवर द मार्केट रिट्रेसेस, जैसे ऐसे मार्केट रिट्रेस करेगा टूवर्ड्स VWAP, वी डोंट नो इफ द मार्केट विल रिट्रेस, राइट. हो सकता है ये तुरंत ही ब्रेकआउट देके R1 के ऊपर चले जाए, वी डोंट नो. बट इफ द मार्केट समहाउ कम्स बैक, इफ द मार्केट गिव्स अ शेक डाउन, वॉट वी विल डू इज VWAP के नीचे वी विल स्टार्ट बाइंग. ये जोन अपन मार्क करेंगे और इस जोन में हम लोग बैंक निफ्टी बाय करेंगे. वाई दिस जोन इन पर्टिकुलर? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स वर्क. आपके हिसाब से कैसे चलते हैं? मार्केट्स वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई, राइट. ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये सबको पता है. बट द रियल आंसर इज मार्केट्स वर्क ऑन लिक्विडिटी. जब तक मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलती, मार्केट्स वोंट गो अप और डाउन. सो यहाँ पे सारे के सारे रिटेल लोग यहाँ पे बाय करने में जुड़े होंगे. यहाँ पे एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड टू बाय बैंक निफ्टी ओवर हियर. इंस्टीट्यूशनल्स विल बी बिजी सेलिंग एट दिस प्लेस. यू नो व्हाई? क्योंकि जब सभी लोग बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा?
देयर नीड्स टू बी अ शेक डाउन, राइट. एक प्रॉपर शेक डाउन आना चाहिए, एक प्रॉपर मूव, पैनिक वाली मूव आनी चाहिए. जिसने भी यहाँ पे 600 के ऊपर बाय कर रखा है 42,600 फ्यूचर्स के ऊपर, एक पैनिक मूव आनी चाहिए जिसमें वो निकल जाए. दिस हैपन्स, राइट. वी कॉल दिस स्टॉप लॉस हंटिंग इन यूजुअल टर्म्स. तो एक स्टॉप लॉस हंटिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, एंड दैट स्टॉप लॉस हंटिंग विल बी यूज टू एंटर. हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, ना कि यहाँ पे. आती है या नहीं, आई डोंट नो. इफ़ दैट कम्स गुड, वेल एंड गुड. अगर नहीं आती है, नो फोमो, रैंडम मार्केट बाय एंट्री मार के फंसना नहीं है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. हम लोग ने एक जोन हमारा जो है वो मार्क कर रखा है कि इस जोन में अगर मार्केट आता है तो हम लोग उसको डेफिनेटली बाय करने को देखेंगे. स्टॉप लॉस क्या रहेगा ऐसे केसेस में? स्टॉप लॉस हम लोग डालेंगे ओआर लो का. ओआर लो क्यों? बिकॉज ओआर लो में आप देखेंगे अगर ये रिक्लेम कर देता है फिर से ओआर लो की लेवल, इसके नीचे मार्केट अगर चले जाता है तो हमारा जो ओवरऑल व्यू था बुलिश, वो फेल हो जा रहा है. तो फिर वो ट्रेड में बने रहने का मतलब नहीं है. सो अपना निगेशन पॉइंट आ रहा है. सो इफ़ द ओआर लो इज गेटिंग रिक्लेम्ड, वी विल एग्जिट आउट ऑफ दैट ट्रेड, एंड दिस जोन वी विल buy Bank Nifty if it retraces back to that zone. Let's see what happens next. Some consolidation maybe, yeah. I'm not sure वहाँ पे आता है क्या, but yes, see this is what I'm talking about. Okay, so this is where most people will panic जिसने 42,600 के ऊपर इन लेवल्स पे बाय कर रखा है. Don't you think so? अगर आपने भी 42,607, 42,610 पे फ्यूचर्स बाय किया होता या कोई इन द मनी ऑप्शन बाय किया होता, तो अगर ये इतनी मूव नीचे आती है 100 पॉइंट नीचे, ऑप्शन अगर 50-60 पॉइंट नीचे चले जाता है, वोंट यू पैनिक? ऑब्वियसली यू विल पैनिक, एंड दैट विल बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब लॉन्ग्स हियर. डरना नहीं है ऐसे समय पे, ओके, डरना नहीं, बिकॉज दैट इज़ आवर प्लान, दैट इज़ आवर एग्जैक्ट प्लान टू गो लॉन्ग, राइट. स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ओवर लो और पीवट का कॉन्फ्लुएंस है, तो अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशन, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है. बट यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग मिल गया. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अ परफेक्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम द मार्केट. इससे ज़्यादा बेहतर कन्फर्मेशन क्या ही हो सकता है? आपने लॉन्ग लिया एंड द मार्केट इमीजिएटली रिट्रेस्ड बैक ऑन द हायर एंड्स. सो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज़, हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था ओआर लो का, उसको निकाल करके व्हाट विल डू इज़ वी विल ट्रेल आवर स्टॉप लॉस टू द लो ऑफ दिस कैंडल. बिकॉज एज अ ट्रेडर व्हाट वी कैन डू इज़ एट मैक्स वी कैन बिकम गुड रिस्क मैनेजर्स. हम लोग को एक्यूरेसी नहीं बढ़ानी है, हम लोग को रिस्क मैनेज करनी है. एज अ गुड ट्रेडर ऑल वी हैव टू डू इज़ मैनेज रिस्क, और जितना आप रिस्क मैनेज करोगे उतना ज़्यादा देर तक आप मार्केट्स में टिके रहोगे. सो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था, उसको निकाल करके इसके नीचे डाल दिया, रिस्क मैनेज कर रहे, कम कर रहे, एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज़ ऑब्जर्व कि मार्केट कर क्या रहा है. हमारे पास टारगेट लेवल्स है. क्या टारगेट्स है हमारे पास? टारगेट्स आपको बताता हूँ, टारगेट सिलेक्ट कैसे करना है पहले. सो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और पीछे के दिन पे चले जाता हूँ. सो आई कैन सी अ जोन जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो सकता है. जो जोन एक बना था जिसको मार्केट कल ब्रेक नहीं कर पाया था फ्राइडे के दिन, हो सकता है वो जोन एक फिर से रेजिस्टेंस जोन के तौर पे निकल के आए. ये जो पूरा जोन है, हो सकता है दिस जोन माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. क्यों? आपको क्यों लग रहा है मैंने ये पर्टिकुलर जोन क्यों सिलेक्ट किया है? रीज़न लाइन चार्ट पे मिल जाएगा. सो व्हेन वी कम ऑन लाइन चार्ट यू विल सी, ये जो पूरा एक एरिया था, इसको मार्केट स्ट्रगल कर रहा था ब्रेक करने को, डिस्पाइट हैविंग दिस कंप्लीट प्राइस एक्शन. यहाँ पे जो पूरा रिजेक्शन होने के बाद ऊपर भी आया था मार्केट, उसके बावजूद if you see market was having troubles breaking that zone, right? So that zone becomes an important zone for us now. So what we will do is we will plot that zone as our target zones. Moreover R1 का उधर confluence है ही. So sorry, ये यहाँ से ये जो एक जोन निकल करके आ रहा है, we will keep this zone as our target zone. और ये अगर मार्केट्स यहाँ पे आता है, what we will do is we will exit our trade. We will exit our trade. I don't know अगर आता है नहीं आता है, let's see. Okay? जब तक वहाँ पे मार्केट्स नहीं जा रहा है, आइदर ये टारगेट्स नहीं आ रहा है, तब तक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. मैन्युअली उसको एग्जिट नहीं करना है कि भाई बस मेरा 500 रुपये बन गया, मैं निकल रहा हूँ. डोंट डू दैट. इफ़ यू डू दैट यू विल नेवर बी एबल टू कंसिस्टेंटली मेक मनी इन मार्केट्स, है ना. चलने वाले घोड़े को काटना नहीं है. लेट द हॉर्स रन. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन प्ले मोड सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ओवर हियर. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ओआर हाई का ब्रेकआउट हुआ है एंड द मार्केट्स आर सस्टेनिंग. ओआर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट सस्टेन करता है, इट्स अ गुड साइन बिकॉज इट इज़ गोइंग इन आवर फेवर. ओआर हाई का ब्रेकआउट हुआ है
और नाउ अभी जो हम लोग का टारगेट है वो काफ़ी पास है. सो आई विल रिमूव दिस लाइन्स, कन्फ्यूजन ना हो. सो आइदर व्हाट वी कैन डू इज़ राइट नाउ ट्रेल आवर स्टॉप लॉस टू बिलो वी वैप, इसको निकालो यहाँ से यहाँ पे रख दो. बिकॉज अगर ये ओवर हाई को तोड़ने के बाद फिर से जोन में आके वी वैप के नीचे चले जाता है, देन अगेन इट मीन्स कि द पॉइंट ऑफ एंट्री हमारा जो था वो निगेट हो रहा है ना. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मैंने वीडियो बना रखा है 24 मिनट्स, उसमें शायद मैंने ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करे हैं क्योंकि वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा था, बट वहाँ पे मैंने लिक्विडिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया, तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पे इफ़ द ओवर हाई ब्रेकआउट होने के बाद इफ़ इट इज़ कमिंग डाउन इन द रेंज अगेन एंड इफ़ इट इज़ गोइंग बिलो वी वैप, तो देयर इज़ नो पॉइंट होल्डिंग ऑन टू दोज लॉन्ग्स, राइट. तो यहाँ पे अपन इस लेवल्स पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं. अबव कॉस्ट अभी है अपना स्टॉप लॉस, जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट है या कॉस्ट के अभाव ही चल रहा है. सो अभी कोई टेंशन नहीं है, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है. ओके, एंड इट इज़ गोइंग इनटू कंसोलिडेशन. तो अभी एक अच्छा चीज़ है ये, दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज फर्स्ट लेग ऑफ रैली हो चुका है, मार्केट भाग चुका है एंड नाउ इट्स गेटिंग कंसोलिडेटेड. सो इट्स गुड फॉर अस बिकॉज मार्केट हमारे साइड में ब्रेकआउट देने का चांसेस बढ़ जाता है. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेट्स वेट इन दिस कंसोलिडेशन एंड दिस कम्स द ब्रेकआउट. हियर कम्स द ब्रेकआउट. इस ब्रेकआउट में हमें एग्जिट करना है. काफ़ी ज़्यादा लोग सोचेंगे तू पागल है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, बट जैसे मैंने बोला था कि ये कल का जो एक जोन था, ये मार्केट वाज हैविंग ट्रबल्स ब्रेकिंग दिस जोन. सो ये जो जोन होता है ना, ऐसे जो जोन्स होते हैं ये इतने इजीली ब्रेक नहीं होते. जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, ये जो जोन्स होते हैं इतने इजीली ब्रेक नहीं होते इसको तोड़ने के लिए, बिकॉज ये जोन्स इंस्टीट्यूशनली बनाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस इतने इजीली अपने लेवल्स गिव अप नहीं करते. सो ये जो लेवल्स है इधर आपको दिखता है ना, मार्केट निकल लो. मोर ओवर हमारा एंट्री पॉइंट क्या था, इट वॉज समवेयर बिटवीन 510 520 फ्यूचर्स. तो 510 520 से लेकर के इफ़ यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 810 820 100 पॉइंट्स का अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस था. तो 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड वैसे ही मिल रहा है. 1:3 यू आर गेटिंग इट एनी वे. सो देयर इज़ नो पॉइंट होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेड मोर, क्योंकि आप बोलोगे R1 का ब्रेकआउट हुआ है अभी R2 आएगा. नो, डोंट डू इट, डोंट कंटिन्यू योर ट्रेड्स लाइक दिस. अगला ट्रेड अगले लेवल्स पे आप ले सकते हो, बट वंस दिस ट्रेड इज डन एग्जिट आउट ऑफ दैट पोजिशन. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन मार्क अ रेक्टेंगल एट दैट जोन, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट जोन मेरे हिसाब से है. सो ये मैंने एक जोन जो मार्क कर रखा है, ये हमारा एग्जिट जोन था. सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल गया. एग्जिट आउट ऑफ दैट पोजीशन. नो मैटर व्हाट आपको लगेगा कि ब्रेकआउट है, नहीं. इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आर स्मार्ट, उनको पता है सब लोग यहाँ पे बाय करेंगे, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक मनी लाइक दिस इफ़ यू आर ट्रेडिंग लाइक दिस. सो एग्जिट आउट आपका ट्रेड हो चुका है, एग्जिट आउट ऑफ दैट पोजिशन. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर ये जोन डिफेंड नहीं हो रहा है, इफ़ दिस जोन ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है, देन दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ शॉर्ट. और ऐसे समय पे आप जो शॉर्ट लेते हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड बन जाता है, बिकॉज देन वो एक बुल ट्रैप की तरह काम करता है, राइट. बुल ट्रैप माने क्या, बुल ट्रैप माने सारे बुल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे की तरफ चले जाता है, दैट इज़ अ बुल ट्रैप. सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो पूरा जोन है ये ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन नहीं कर रहा है, राइट. ये सस्टेन नहीं कर रहा है. यू कैन क्लियरली सी दैट ब्रेकआउट इज़ नॉट वर्किंग एंड द जोन इज़ नॉट सस्टेनिंग. ये जो रिजेक्शन आ रहा है, व्हाट यू कैन डू इज़ प्लान टू शॉर्ट मार्केट्स इन दिस रिजेक्शन. 818 820 का जो जोन है ना, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो. दिस इज़ अ रिस्की बट दिस इज़ अ हाई प्रोबेबल ट्रेड. ओके, सो इसमें आप शॉर्ट करो. अगेन 100 पॉइंट्स का स्टॉप रहेगा. अगर ये हाई रिक्लेम हो जाता है तो फिर आपको रिवर्सल करना है, मतलब SAR जो बोलते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स. मतलब आपको करंट ट्रेड जो शॉर्ट है उससे निकल करके लॉन्ग जाना है और जो भी इधर पे लो बनेगा उसका स्टॉप लॉस डालना है. सो यहाँ पे आप वो कर सकते हो कि अभी जोन है, डिफेंड नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, शॉर्ट इट एंड कीप दिस एज स्टॉप लॉस. एंड इफ़ यू आर रॉन्ग, इफ़ द ट्रेड गोज रॉन्ग, SAR कर दो, स्टॉप एंड रिवर्स कर दो. अगर मार्केट कुछ इस तरह से जाता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग ले लो और इसको स्टॉप लॉस डाल दो एंड देन राइड इट अंटिल R2. R2 कहाँ पे, R2 ऊपर है, R2 यहाँ पे है. सो R2 तक आप उसको फिर राइड करो. यहाँ पे ऐसे दो सिनारियोज निकल करके आ रहे हैं. सो फर्स्ट हम लोग ने क्या किया है, फर्स्ट हम लोग ने शॉर्ट क्रिएट किया है. लेट्स से 820 पे हम लोग ने शॉर्ट क्रिएट कर रखा है. यहाँ पे ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पर हम लोग ने शॉर्ट कर रखा है, 100 पॉइंट्स का स्टॉप डाला है. बिकॉज रिजेक्शंस ऐसे होते हैं ना, जो अगर आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया सा मूव दे देता है. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. इट इज़ गोइंग इन आवर फेवर. ओके, R1 का जो ब्रेकआउट हुआ था उसको अब ये फिर से लोअर साइड्स पे आके
तोड़ दिया है, मतलब जो रिक्लेम बोलते हैं ना, लोअर साइड्स पे लेवल रिक्लेम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो पूरा सेटअप था ये फेल हो रहा है, ये हायर लेवल्स पे जो ब्रेकआउट हुआ था ये फेल हो रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कन्फर्मेशन टू होल्ड ऑन टू शॉर्ट। अगर आपने शॉर्ट 820 पे नहीं किया है तो दिस इज़ अ गुड लेवल टू शॉर्ट। 770 770 पे आप शॉर्ट कर लो और जो जोन है उसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल दो। व्हाट इज़ द जोन? अपना जो जोन है इसके ऊपर स्टॉप डाल दो। सो 770 टू 850, 80 पॉइंट्स का स्टॉप आप अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इधर स्टॉप डाल दो एंड देन वेट ऑन, क्योंकि ऐसे जो सेटअप्स होते हैं ना, हाई प्रोबेबल सेटअप्स होते हैं, एंड जब ऐसे सेटअप्स आते हैं ना उनको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट, 770 शॉर्ट कर दो, 850 स्टॉप लॉस डाल दो। कितना 70 पॉइंट्स ऑप्शंस में करोगे, कितना 30-35 पॉइंट्स का स्टॉप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू टेक दैट शॉर्ट क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबल शॉर्ट, राइट। एंड देन लेट्स कीप वॉचिंग व्हाट हैपन्स। हाँ, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई चलो शॉर्ट तो कर लिया, टारगेट कहाँ पे रखूँगा, वेयर विल आई एग्जिट माई करंट पोजीशन। सो दो तीन टारगेट्स आपको निकल करके आ रहे हैं। जैसे आप जोन के बारे में मैं बात करता हूँ हमेशा, एक जोन को पकड़ के टारगेट्स ये करने। तो फर्स्ट जोन तो अपना ये है ना। क्यों ये फर्स्ट जोन क्यों है? फर्स्ट इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो इस सारे जोन की लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है, इन सारी जोन की लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ओपनिंग रेंज हाई है, तीसरी चीज़ वी वैप है। तो ये आप फर्स्ट टारगेट पकड़ के चलो कि अगर इस जोन में कहीं पे 660 670 आता है, यू कैन एग्जिट आउट वहाँ पे। और दूसरा जो है दूसरा टारगेट है, उसके लिए हम लाइन चार्ट पे जाएंगे एंड इस जोन को प्रेफर करेंगे। इस जोन को क्यों? क्योंकि आप देखो तो ये जोन कल का जोन था जो आज हो सकता है सपोर्ट दे दे। जैसे हम लोग ने पहले वाले इसके निकाले थे कि पहले वाला रेजिस्टेंस था, हो सकता है आज रेजिस्ट कर ले। यहाँ पे जो हम लोग ने बात करी थी, यहाँ पे जो बात करी थी वो सेम बात यहाँ पे हो रही है कि हो सकता है ये जो जोन है ये एक प्रीवियस डे का वो था, रेजिस्टेंस जोन था। तो अभी हो सकता है अपने को सपोर्ट वहाँ पे दे दे। तो व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा OR हाई के आसपास, ये जो है ये पूरा हम लोग फर्स्ट टारगेट एग्जिट करेंगे यहाँ पे। एंड सेकंड टारगेट इसके लिए रखें क्योंकि शॉर्ट्स में ना आपको फटाफट टारगेट्स मिल जाते हैं, लॉन्ग्स में वैसा नहीं होता। शॉर्ट्स में कई बार क्या होता है, आपको टारगेट जो है तुरंत मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। सो वी विल सी, वी विल ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। हाँ, एंड वंस यूर यहाँ पे ये हो गया भाई ख़त्म। तो ये अब देखो शॉर्ट्स जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो हम लोग के मार्केट्स में सेइंग भी है कि बुल्स टेक द स्टेयर्स, बेयर्स टेक द एलिवेटर्स। तो बेयर्स जो है हमेशा घोड़े पे दौड़ के आते हैं और हमेशा घाई में रहते हैं। सो मार्केट्स ऑलवेज जब गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियसली गिरता है, चढ़ने को टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है। आप मान के चलो यहाँ पे कहीं पे आप फर्स्ट आपके इनिशियल 50% क्वांटिटीज़ एग्जिट कर देते हो। तो जब आप यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होता है, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर टू पुट योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, और जो भी आपका रिड्यूस करना है, रिस्क रिड्यूस करना है। इनिशियल स्टॉप लॉस डाल के नहीं बैठना है क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्स कर गया तो फिर उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो इसको निकाल करके, जो भी आपका इनिशियल स्टॉप था उसको निकाल करके या तो कॉस्ट पे डाल दो या तो इन कैंडल्स के ऊपर डाल दो। जो भी करो रिस्क रिड्यूस करो, कोई भी करके रिस्क रिड्यूस करना है। एंड नाउ यू सी 10 मिनट के अंदर अंदर आपको फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट मिल गया। इसके बाद आप बोलोगे कि अरे मार्केट तो अभी गिर रहा है, अभी आप एग्जिट क्यों कर रहे हो, अभी तो आपको होल्ड करना चाहिए। भाई आई बिलीव इन लेवल्स, आई प्ले इन जोन्स। तो मेरे हिसाब से ये जोन आ गया, ये वाला जो जोन था ये रिक्लेम हो गया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है ऐसा मेरे को लग रहा है। आई विल एग्जिट आउट ऑफ माई पोजीशन। मोर ओवर इफ़ यू सी, आपको 1:3 तो मिल ही रहा है ना। हम लोग ने शॉर्ट कहाँ करा था, 820 पे करा था, अभी 520 आ रहा है। तो 1:3 आपको मिल ही रहा है। सुबह 1:3 मिला, अभी 1:3 मिला। क्या करना है, सिस्टम बंद करके गो एंड स्लीप। जो करना है करो, वॉच अ मूवी, डोंट ट्रेड मार्केट्स यहाँ से आगे, बिकॉज इतने वोलेटाइल मार्केट्स में 2 ट्रेड आपको 1:3 दिया है। यू नीड टू स्टॉप, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है। बिकॉज इफ़ यू डोंट स्टॉप, मार्केट नोज दिया हुआ पैसा वापस कैसे लेना है, राइट। मोर ओवर आई विल टेल यू वन मोर कॉन्फ्लुएंस कि इस लेवल्स पे अपने को एग्जिट क्यों करना है। लेट्स गो टू लाइन चार्ट। ये सुबह का आपको बेस दिख रहा है, दिस कॉन्फ्लुएंसेस विद जो पहले वाला हम लोग ने सपोर्ट जोन जो बोला था, इट कॉन्फ्लुएंसेस विद दैट। सो दिस लेवल बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे एग्जिट करना बहुत मैंडेटरी सा बन जाता है। रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे होगा कि यार और शॉर्ट करो और शॉर्ट करो। शॉर्ट नहीं करना यहाँ पे, एक्चुअली लॉन्ग नहीं कहूँगा मैं, काउंट्रा ट्रेड इतना नहीं जाना है। लेकिन ये जो पूरा जोन आपका एक बार रिक्लेम हो जाता है ना, तो उसको निकालना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ ट्रेड्स ऑन टाइम,
then the market knows how to take your money back. Let's see what happens next. It gave you an exit दिया this zone, it gave you an exit and then it reversed back. यहाँ पे लॉन्ग लेना है नहीं, बस हो गया भाई, गो होम. बिकॉज इफ़ यू कीप डूइंग दिस लॉन्ग शॉर्ट ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे. लूप में कभी फंस गए पता नहीं चलेगा. मार्केट विल टेक एवरीथिंग बैक. सो इतना 1:3 के 2 ट्रेड्स मिल गए इन बैंक निफ्टी वॉटल्स. 300 600 पॉइंट पकड़ लिया, गो होम, चले जाओ, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे. ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते ये बोल के कि चलो मैं यहाँ से लॉन्ग ले लूँगा, ये देखो इट विल कीप ट्रैपिंग यू. ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे. मार्केट काफ़ी रैंडम वोलेटिलिटी क्रिएट करता है. इट्स अ मास्टर इन इट. तो स्टॉप इट, निकल जाओ. और दिस इज़ हाउ बेसिकली यू ट्रेड बैंक निफ्टी. दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन. दिस इज़ हाउ यू ट्रेड मार्केट्स. मैं obviously this is being explained after the market is done. This is a hindsight analysis, as you can call it, but at least you can understand few things about bank nifty, few things about how to read price action from these videos. कैसे derive करना है live markets में levels, वो अगर आप एक बार सीख गए then and वो भी अगर बैंक निफ्टी में, then any other asset or any other underlying instrument becomes easy to trade, क्योंकि बैंक निफ्टी is something that is really hard to understand. And if you understand bank nifty, then everything else becomes easy. So I will try to come with such videos every single day. Obviously late होगा रात में, because as I said मेरा सारा काम होने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें I'm trying to make these videos. So 9 PM, 8 PM, 10 PM, 11 PM ऐसा कुछ हो सकता है. I'm not sure about the time also, but I will try to make these videos every single day, so you get a grip on price action of bank nifty, price action of index, price action and liquidity concepts, etc. So if you're liking this type of content, make sure to subscribe to the channel, share it with your trader friends, because I'm not going to charge a single penny for this. और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको कोर्स में भी कोई नहीं बताएगा. अगर कोई बताएगा भी तो उसका 40-50 हज़ार चार्ज करेगा. सो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल कंटेंट फ्रॉम a learner's perspective. So make sure to like and subscribe. I will see you in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.